When online classes, class 10, subject science, chapter 9, part 3. What there are interesting difference to in the two situations. In the first case, the variation become common because it give a survival advantage. In other words, it was naturally selected. We can see that the natural selection is started by a crow. The more crow there are, the more red beetles would be eaten, and the more the proportions of green beetles in the population would be. Thus, natural selection is directing evolution in the beetles population. It results in adaptation in the beetles population to fit their environment better. परंतु दोनों परिस्थितियों में कुछ रोचक अंतर भी हैं। प्रथम स्थिति में विभिन्नता एक सामान्य विभिन्नता बनी क्योंकि इसमें उत्तरजीविता के लाभ की स्थिति थी। दूसरे शब्दों में यह एक प्राकृतिक चयन था। हम देख सकते हैं कि प्राकृतिक चयन कौवों द्वारा किया गया। जितने अधिक कौवे होंगे उतने अधिक लाल भृंग उनके शिकार बनेंगे, अथवा समिष्ट में हरे भृंगों के अनुपात संख्या बढ़ाता जाएगा। अतः प्राकृतिक चयन भृंग समिष्ट में विकास की ओर ले जा रहा है। यह भृंग समिष्ट में अनुकूल दर्शा रहा है, जिससे समिष्ट पर्यावरण में भी और अच्छी तरह से रह सके। In the second situation, the color changes gave no survival advantage. Instead, it was simply a matter of accidental survival of beetles of one color that changes the common characteristic of the resultant population. The elephant would have not have caused such major havoc in the beetles population. In the beetles population had been very large, so accident in small population can change the frequency of some gene in a population even if they give no survival advantage. This is the notion of genetic drift, which provides diversity without any adaptation. दूसरी स्थिति में रंग परिवर्तन का अस्तित्व में कोई लाभ नहीं मिला। वास्तव में यह मात्र सहयोग ही था कि दुर्घटना का एक रंग की भृंग समिष्ट बच गई, जिससे समिष्ट की स्वरूप बदल गया। यदि भृंग के समिष्ट का आकार बड़ा होता तो हाथी का उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। छोटी समिष्ट में दुर्घटनाएं किसी जीन की आवृत्ति को प्रभावित कर सकती हैं, जबकि उनका उत्तरजीविता हेतु कोई भी लाभ न हो। यह आनुवंशिक अपवाद का सिद्धांत है जो बिना किसी अनुकूलन के भी विभिन्नता उत्पन्न करता है। Now consider a third situation in this, as if the beetles population began to expand, the bushes started suffering from a plant disease. The amount of leaf material for the beetles is reduced. The beetles are poorly nourished. As a result, the average weight of the adult beetles decreased from what it used to be when leaves were plentiful. But there is no genetic change occurring. After a few years and a few beetles generations of such scarcity, the plant disease is eliminated. There is a lot of leaf food at this time. What would we expect the weight of the beetles to be? अब तीसरी स्थिति में आप देखिए कि भृंग समिष्ट बढ़ाना प्रारंभ करती है। झाड़ियों में पादप रोग लग जाता है। भृंगों के लिए पत्तियां कम होती जाती हैं। परिणाम स्वरूप भृंग अल्प पोषित रह जाता है। भृंग के औसत भार की अपेक्षाकृत कमी आई। कुछ वर्षों के बाद इस दुर्भिक्ष में स्थिति में भृंगों की कुछ पीढ़ियां के उपरांत जब पौधों के रोग समाप्त हो जाते हैं, तब भोजन की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होती है। तब भृंगों के बाहर में क्या क्या परिवर्तन आएगा, अब हम इसके बारे में विचार करेंगे। एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्राइट्स, उपार्जित एवं आनुवंशिक लक्षण। वी डिस्कस द आइडिया that the germ cell of sexually reproducing population are made in specialized reproductive tissue. If the weight of the beetles is reduced,
because of starvation that will not change the DNA of the germ cell. Therefore, low weight is not a trait that can be inherited by the progeny of the starving beetles. Therefore, even if some generations of beetles are low in weight because of starvation, that is not an example of evolution, since the change is not inherited. Our generation change is non-reproductive tissue, cannot be passed on to the DNA of the germ cell. Therefore, the experiences of an individual during its lifetime cannot be passed on to its progeny and cannot direct evolution. अब हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि लैंगिक जनन में करने वाले जीवों में युग्मक अथवा जनन कोशिकाएं विशिष्ट जनन ऊतक में बनते हैं। यदि भक्षण के कारण भृंगों के शरीर के भार में कमी आती है तो इनसे जनन कोशिकाओं में डीएनए का संगठन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अतः भक्षण के कारण यदि समिष्ट में कुछ भृंग कम भार के हो तो उसे में विकास की संज्ञा नहीं दी जा सकती। इसका मुख्य कारण इस लक्षण का वंशानुगत न होना है। कायिक ऊतकों में से होने वाले परिवर्तन लैंगिक कोशिकाओं के डीएनए में नहीं जा सकते। किसी व्यक्ति के जीवन काल में अर्जित अनुभव क्योंकि जनन कोशिकाओं में डीएनए का भी कोई अंतर नहीं लाता, इसलिए इसे भी जैव विकास नहीं कह सकते। Consider another example of how an individual cannot pass on to its progeny the experiences of its lifetime. If we breed a group of mice, all their progeny will have tails as expected. Now, if the tails of these mice are removed by surgery in which generation do these tailless mice have tailless progeny? The answer is no, and it makes sense because removal of the tail cannot change the gene of the germ cell of the mice. अब तीसरी स्थिति को देखिए कि इसमें भृंग समिष्ट बढ़ना प्रारंभ करती हैं। झाड़ियों में पादप रोग लग जाते हैं। भृंगों के लिए पत्तियां कम हो जाती हैं। परिणाम भृंग अल्प पोषित रह जाते हैं। भृंग की औसत भार अपेक्षाकृत कम ही आई। कुछ वर्षों के बाद इस दुर्भिक्ष की स्थिति में भृंगों की कुछ पीढ़ियों के उपरांत जब पौधों के रोग समाप्त हो जाते हैं तो भोजन की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होती है, तब भृंगों के भार में क्या परिवर्तन आएगा, अब हम इसमें विचार करेंगे। आइए हम यह जानने के लिए एक अर्जित अनुभव लक्षण जैव प्रक्रम द्वारा अगली पीढ़ी को वंशानुगत नहीं होते एक प्रयोग द्वारा समझते हैं। यदि हम पूँछ वाले चूहों का संवर्धन करें तो अगली पीढ़ी की संतति के कुछ भी पूँछ होंगी, जैसे कि अगली पीढ़ी में संतति के भी पूँछ होंगी। जैसा कि हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि यदि इन चूहों की पूँछ को कई पीढ़ी तक काटते रहें तो क्या इन चूहों से बिना पूँछ वाली संतति प्राप्त होगी? इसका उत्तर है कि नहीं, जो स्वाभाविक भी है क्योंकि पूँछ काटने से जनन कोशिकाओं के जीन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन 1809-1882। Charles Darwin set out on a voyage when he was 22 years old. The 5-year voyage took him off South America and the Iceland of its coast. The studies that he conducted during this voyage were to change forever the way we look at the variety of life on Earth. Interestingly, after he got back to England, he never left its shores again. He stayed at home and
conducted various experiments that led him to formulate his hypothesis that evolution took place due to natural selection. He did not know that the mechanism whereby variation arose in the species we would have been enlightened by Mendel's experiment, but these two gentlemen did not know of each other or their work. We often associate Darwin solely with the theory of evolution, but he was an accomplished naturalist, and one of the studies he conducted was to be with the role of earthworm in soil fertility. चार्ल्स डार्विन जब 22 वर्ष के थे तब उन्होंने साहसिक समुद्री यात्रा की। 5 वर्षों में उन्होंने दक्षिण अमेरिका तथा इसके विभिन्न द्वीपों की यात्रा की। इस यात्रा का उद्देश्य पृथ्वी पर जैव विविधता के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना था। इस यात्रा को जैव विविधता के विषय में उस समय व्याप्त दृष्टिकोण का सदा के लिए बदल दिया। यह भी अत्यंत रोचक है कि इंग्लैंड वापस आने के बाद वह पुनः किसी और यात्रा पर नहीं गए, वह घर पर ही रहे, पर उन्होंने अनेक प्रयोग किए जिनके आधार पर उन्होंने अपने प्राकृतिक वर्णन द्वारा जैव विकास के अपने सिद्धांत की परिकल्पना की। वह यह जानते थे कि किसी विधि द्वारा स्पीशीज में विभिन्नताएं आती हैं, उन्हें मेंडल का प्रयोग का लाभ मिलता, परंतु ये दोनों व्यक्ति वैज्ञानिक न तो एक दूसरे की और ना ही उनके कार्य के विषय पर जानते थे। हम डार्विन के केवल उनके जैव विकासवाद के कारण ही जानते हैं, परंतु वह एक प्राकृतिक शास्त्री भी थे तथा उनका एक शोध भूमि के उर्वरता बनाने में केंचुओं की भूमिका का विषय में था। This is the reason why the ideas of heredity and genetics that we have discussed earlier are so essential for understanding evolution. Even Charles Darwin, who came up with the idea of evolution of species by natural selection in the 19th century, could not work out the mechanism. It is ironic that we could have done so if he had seen the significance of the experiment his Austrian contemporary Gregor Mendel was doing, but then Mendel too do not notice Darwin's work as relevant to his. यही कारण है कि आनुवंशिकता वंशानुगति जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं का ज्ञान जैव विकासवाद को समझाने के लिए आवश्यक है। यही कारण है कि 19वीं शताब्दी के प्राकृतिक वर्णन तथा जैव विकास का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले चार्ल्स डार्विन भी इसकी क्रियाविद नहीं खो सके। यह आवश्यक ही ऐसा कर पाते यदि उन्होंने अपने समकालीन ऑस्ट्रियन ग्रेगर मेंडल का प्रयोग के महत्व को जाना होता। मेंडल भी डार्विन के सिद्धांतों से अनभिज्ञ थे। ऑरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति। डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन टेल्स अस हाउ लाइफ इन्वॉल्व फ्रॉम सिंपल टू मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म एंड मेंडल एक्सपेरिमेंट टू गिव अस द मैकेट्स फॉर द inheritance of traits from one generation to the next, but neither tell us anything about how life began on earth in the first place. डार्विन के सिद्धांत हमें बताते हैं कि पृथ्वी पर सरल जीवों की जटिल स्वरूप वाले जीवों का विकास किस प्रकार हुआ है। मेंडल के प्रयोग से हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लक्षणों में वंशानुगत की कार्यविधि को पता चला, परंतु दोनों में ही यह बताने में असमर्थ रहे कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, अर्थात इसका सर्वप्रथम आविर्भाव किस प्रकार हुआ। J.V.S. Haldane
a British scientist who became a citizen of India later suggested in 1929 that life must have developed from the simple inorganic molecules which were present on Earth soon after it was formed. He speculated that the conditions on Earth at that time, which were far from the conditions we see today, could have given rise to more complex organic molecules that were necessary for life. The first primitive organism would arise from further chemical synthesis. एक ब्रिटिश वैज्ञानिक जो JBS हाल्डेन, जो बाद में भारत के नागरिक हो गए थे, सन 1929 में यह सुझाव दिया कि जीवों को सर्वप्रथम उत्पत्ति उन सरल कार्बनिक अणुओं से हुई होगी जो पृथ्वी की उत्पत्ति के समय बने थे। उसने कल्पना की कि पृथ्वी पर उस समय का वातावरण पृथ्वी के वर्तमान वातावरण से सर्वथा भिन्न था। इस प्राथमिक वातावरण से संभवतः कुछ जटिल कार्बनिक अणुओं का संश्लेषण हुआ जो जीवन के लिए आवश्यक थे। सर्वप्रथम प्राथमिक जीव अन्य रासायनिक संश्लेषण द्वारा उत्पन्न हुए होंगे। यह कार्बनिक अणु किस प्रकार उत्पन्न हुए, इसके उत्तर में परिकल्पना स्टैनली एल मिलर तथा हेराल्ड सी उडे द्वारा 1953 में किए गए होंगे। हाउ डिड these organic molecules arise? An answer was suggested by the experiment conducted by Stanley L. Miller and Arnold C. Urey in 1953. They assembled on atmosphere similar to that thought to exist on early Earth. This had molecules like ammonia, methane, and hydrogen sulfide, but no oxygen or water. This was maintained at a temperature just below 100 centigrade, and sparks were first thought the mixtures of gases to simulate lighting. At the end of a week, 50% of the carbon from methane had been converted to simple compounds of carbon, including amino acids, which make up protein molecules. So can life arise afresh on Earth even now? अब इसके उत्तर की परिकल्पना स्टैनली एल मिलर तथा हेराल्ड सी उडे द्वारा 1953 में किए गए प्रयोगों के आधार पर की जा सकती है। उन्होंने कृत्रिम रूप से ऐसे वातावरण का निर्माण किया जो संभवतः प्राचीन वातावरण के समान था। इसमें अमोनिया, मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड के अणु थे, परंतु ऑक्सीजन के नहीं। पात्र में जल भी था। इसे 100 सेल्सियस से कुछ कम ताप पर रखा गया। गैस के मिश्रण में चिंगारियाँ उत्पन्न हो गई। जैसे आकाश में बिजली, एक सप्ताह के बाद 15% कार्बन मीथेन से सरल कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित हो गए। इनमें से अमीनो अम्ल भी संश्लेषित हुए जो प्रोटीन में अणुओं के निर्माण करते थे। तो क्या यह पृथ्वी पर आज भी जीवन की उत्पत्ति हो सकती है? थैंक यू।